हम्म। ओके, चलो देखते हैं, प्रोग्रेस में है बोल रहे हैं, तो देखते हैं क्या होता है कि हाँ anyway, वही तो। हम्म। प्रभु की स्तुति हो। हम शुरू कर देते हैं, हमें थोड़ा कंफ्यूजन हो गया यहाँ पर, लेकिन कोई बात नहीं है। हम यस। वापस शुरू करते हैं और देखते हैं कि हालेलुया, हमारा बाइबल स्टडी आगे जाता है। हालेलुया, धन्यवाद है आमेन प्रभु को। आमेन। धन्यवाद आमेन प्रभु को, आमेन। धन्यवाद प्रभु को, ओके, धन्यवाद। चलो, तू बोल रही थी, खत्म किया तूने? हाँ। नहीं, वो हाँ बोल। मुस्लिम हाँ बोल। नारी के बारे में मैं বল रही हाँ। थी যে একজন মুসলিম নারীর ব্যাপারে ম্যাম বলছিলেন যে আহ, উনি দেখেছেন যে ওনার অনেক বেশি ফলোয়ার্স, তবুও আসলে মুসলিমদের কাছে নাকি কুকুর রাখা হারাম। তো তবুও উনি বলছেন যে কুকুরের সাহচর্য খুব ভালো, তার সে খুব ভালো সঙ্গী হয়, তাকে সঙ্গ দেয়, বিভিন্ন রকম বিপদে আপদে ঝাঁপিয়ে পড়ে, এরকম নাকি বলছিলেন। এবং তাতে যারা কমেন্ট করেছেন তারা একজনও বলছে না যে এটা মুসলিমদের কাছে হারাম। অর্থাৎ সেই প্রাণীর সাহচর্য মানুষের ভালো লাগছে, সে যাই হোক না কেন সেটা ভালো লাগছে। সেই ভালো লাগার থেকেই যা যা কিছু হওয়ার তা হচ্ছে। এরপর আমরা আবার বাইবেল স্টাডি নিয়ে আগে যাব। আমেন। तो यहाँ पर मैं इसलिए मैंने एग्जाम्पल दिया, क्योंकि पाप आने के पहले प्रभु ने सोचा कि ये आदम जो है, ये हमारे रूप से बनाया हुआ है, वो एनिमल के साथ नहीं रह सकता है, उसे उसके जैसा ही कोई चाहिए। और फिर प्रभु ने उसके लिए एक साथी बनाया। लेकिन अब जो एग्जाम्पल हमने दिया, वो है पाप के बाद की बात, आज की बात। हम्म। जो पाप से, परमेश्वर की नजर से जब ये मनुष्य जात गिर गई, तो पाप की वजह से प्यार ठंडा पड़ रहा है अभी, प्यार ठंडा पड़ रहा है। और इसकी वजह से हम्म। हम एक दूसरे की देखभाल नहीं कर पा रहे हैं। मनुष्य मनुष्य को यस। भूल रहा है, अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भूल रहा है वो, और अपनी साथ देने की बजाय वो दूरियां हो रही है, लोगों को अकेला महसूस हो रहा है। और फिर वो एनिमल्स को अपने साथ रख रहे, और वो एनिमल को इतना प्यार कर रहे वो लोग कि उस एनिमल के सामने उनके खुद के लोग भी कम पड़ जाते, फीके पड़ जाते हैं। इतना हम्म। अटेंशन वो जानवर को देते हैं, लेकिन अपने लोगों के ऊपर उनका ध्यान नहीं होता है। ये हम्म। डिफरेंस हो गया पाप के पहले और पाप के बाद की जिंदगी के। हम्म। গ্লোরি জিসাস। আচ্ছা। তো প্রভু ঈশ্বর প্রভু ঈশ্বর দেখলেন যে আমি যে মানুষ সৃষ্টি করেছি সেটা সমস্ত প্রাণীদের থেকে আলাদা। এই কখনোই মানুষ কখনোই এই প্রাণীর সঙ্গে অ্যাডাম কখনোই ওই অ্যানিমেলসদের সঙ্গে থাকতে পারবে না। তাই প্রভু ঈশ্বর অ্যাডামের জন্য একটি আহ, সঙ্গীর কথা ভাবেন এবং তাকে তৈরি করেছিলেন। এবার ম্যাম ওই এক্সাম্পলটা কেন দিয়েছেন, কারণ ওই ও- এই নারীর কথা যেটা আমরা মুসলিম নারীর কথা যেটা আমরা বললাম, সেটা পাপের পরবর্তী জীবন, এবং প্রভু ঈশ্বরের যেটা সেটা পাপের আগের জীবন। এই পার্থক্যটা আমাদের বুঝতে হবে। পাপ করার পরে এখন কি হয়েছে, মানুষ মানুষের সঙ্গে বিভেদ সৃষ্টি হচ্ছে, এবং প্রাণীদের সঙ্গে তখন তাদের মনে হচ্ছে যে আমাদের যে একাকিত্ব সেটা কাটানোর জন্য হয়তোবা প্রাণীর আমরা সাহায্য নিতে পারি। তো সেই জায়গায় যে কোনো রকমের প্রাণীদের সঙ্গে তাদের বন্ধুত্বপূর্ণ আচরণ করে, এবং এরকম সেই জায়গায় চলে যাচ্ছে যে হয়তোবা আমরা ঘরের বা কাছের মানুষদের ততটা সাহচর্য দিতে পারছি না, ততটা তাদের মধ্যে আমরা সেই দেখভাল করার চেষ্টা করছি না, যতটা আমরা আমাদের সেই পোষ্যটিকে করছি। এবং তার জন্য কি হচ্ছে, মানুষে মানুষের মধ্যে প্রেম প্রীতি ভালোবাসা সব চলে যাচ্ছে, এবং একটা মানে বিশাল পার্থক্য চলে আসছে। গ্লোরি টু গড। Amen. या तो ऐसी परिस्थिति थी कि वो अकेला था,
उसको कंपेयर परमेश्वर की नजर में नहीं था, ये कंपेनियनशिप नहीं थी वहां पर। तो ये जरूरत प्रभु ने महसूस करते हुए प्रभु ने कहा कि हम आई विल मेक हिम एंड हेल्प मीट फॉर हिम। तो मैं, प्रभु बोलता हम्म। है कि मैं ऐसे कुछ बनाऊंगा कि वो उसकी मददगार हो जाएगा, सहकारी हो आमेन। जाएगा, कंपेनियन बन जाएगा। कंपनी। हालेलुया। আমেন। তো এই সময় তো প্রভু ঈশ্বর যেটা চিন্তা করেছেন যে আহ, না, একটা সঙ্গীর প্রয়োজন মানুষের জন্য। প্রভুর, পরমেশ্বরের চোখে তো কম্পেনিয়নশিপের কোনো দরকারই ছিল না, কিন্তু মানুষের প্রয়োজনেই প্রভু ঈশ্বর তখন বললেন যে মানুষের জন্য, একা মানুষটির জন্য একা থাকা ভালো নয়, তাই আমি তার জন্য একজন উপযুক্ত সঙ্গী তৈরি করব। একদম, যে তাকে সাহায্যকারী, যে তাকে সাহায্য করবে সেই রকম উপযুক্ত একটি সঙ্গী তৈরি করব। আমেন। और फिर प्रभु ने ये, जब हम ये पढ़ रहे हैं, हम जेनेसिस का दूसरा अध्याय है, 18 और হুম। 19 वचन में আচ্ছা। ये हम पढ़ने को मिलेगा। আমেন। তো আদি পুস্তক আহ 2 নম্বর অধ্যায় 18 এবং 19 বচনে এই সম্পর্কে আছে, আমরা পড়ে নেব সবাই। तो अब हम देखेंगे कि प्रभु ने कैसे उस आदम को साथी कैसे बनाया, हम देखते हैं। तो फिर वो जेनेसिस का उसी अध्याय में परमेश्वर ने लिखा है कि परमेश्वर पिता ने आदम को गहरी नींद में सुलाया और वो सो गया, হুম। ऐसा लिखा है। और वो হুম। जब वो सो गया, तब जाके प्रभु ने उसका एक साइड का रिब जो है, হুম। पसली जो है, वो पसली निकाली और उसको प्रभु ने आकार दिया। प्रभु ने उसे হুম। एक औरत का शेप दिया उसको, और उसे उसके सामने लाकर खड़ा कर दिया। ऐसा हो गया। तो जब सोया হুম। था, आदम सोया था, হুম। तभी प्रभु ने ये किया, औरत को बनाकर फिर उसको आदम के सामने लाकर खड़ा कर दिया। और আমেন। फिर গ্লোরি। आदम ने देखा कि ये इसे और इसको क्या बोला कि वो एक वुमन, औरत बोला, হুম। क्योंकि হুম। वुमन इंग्लिश में यह है कि मैन और वुमन। मैन, वुमन। वुमन, तो मैन से उसको बाहर निकाला, इसीलिए उसे হুম। वुमन कहा जाता है, ऐसा बाइबल में হুম। लिखा है। আমেন। তো এই 2 নম্বর অধ্যায় আদি পুস্তকের 21 নম্বর বচনে আমরা দেখতে পাই যে সেই জন্য সদাপ্রভু ঈশ্বর আদমকে একটি গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন করলেন এবং তাতে তিনি ঘুমিয়েও পড়লেন। তারপর তিনি তার একটা বুকের পাঁজর তুলে নিয়ে সেই জায়গাটা বন্ধ করে দিলেন। ওই ঘুমের মধ্যেই অ্যাডাম রয়েছে, এবং সেই জায়গাটা পাঁজর তুলে নিয়ে বন্ধ করে দিলেন, এবং সেই তুলে নেওয়া পাঁজরের থেকে প্রভু ঈশ্বর একজন স্ত্রীলোক তৈরি করলেন, একজন স্ত্রীলোকের সৃষ্টি করলেন, এবং তৈরি করে তাকে অ্যাডামের কাছে নিয়ে গেলেন এবং তার সামনে এনে উপস্থিত করলেন। সেই হাড়, সেই পাঁজর থেকে এই স্ত্রীলোকে তৈরি করে অ্যাডামের সামনে নিয়ে গিয়ে প্রভু ঈশ্বর উপস্থিত করলেন। আমেন। तो आदम ने देखा कि ये तो मेरे शरीर से बाहर आई है, बोन ऑफ माई बोन, फ्लैश ऑफ माई फ्लैश, मेरी हड्डियों से, यस। मेरी मसल्स, मांस से इसका जन्म हुआ है। तो उसने उसको औरत कहा है। और फिर उसके बाद 24 वचन में लिखा है कि देयरफॉर, क्योंकि अभी ये दोनों अलग नहीं है, उससे निकाला गया है प्रभु ने उसे, तो ये अलग তাই। कैसे हो सकते हैं? उससे ही, उसका ही भाग है হুম। ये। तो इसीलिए पिता परमेश्वर ने क्यों ऐसा किया? क्योंकि फिर वो एक ही हो जाए, कि दो ना रहे, दो मत ना रहे, लेकिन হুম। वो आ, एक हो जाए, हर हर किसी से वो एक दूसरे का सहारा बने, एक दूसरे को समझे, एक दूसरे को मदद करे, ऐसी प्रभु की इच्छा थी। तो इसीलिए वो एक जीवन,
एक बना दिया प्रभु ने, क्योंकि उसके ही शरीर का भाग था ये। ऐसा प्रभु की योजना, सुंदर आमेन योजना से। আমেন 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 হালেলুয়া। তো এবার অ্যাডাম দেখলো যে ওর থেকেই তো এটার সৃষ্টি, ওর হাড় মাংস এবং পাঁজরের হাড় থেকে, স্পেশালি পুরুষের দেহের পাঁজরের হাড়ের মধ্যে থেকে সেটা তুলে নেওয়া হয়েছে বলে তাকে আমরা স্ত্রীলোক বা নারী বলবো। নারী, তার সৃষ্টি পুরুষের যে পাঁজরের হাড় তার থেকে, তাই তারা কখনোই আলাদা হবে না, তারা এক হবে, এক প্রাণ, এক মন, এক আত্মা, তাতে কোনো দ্বিমত থাকতে পারে না, এক মত হতেই হবে তাদের, এবং তাদের মধ্যে কোনো মতভেদ থাকবে না, কেননা তারা তো একই ভাবে সৃষ্টি হয়েছে। সেই অ্যাডামের হাড় মাংস সমস্ত কিছু দিয়েই নারীর সৃষ্টি হয়েছে, তাই তারা দুজনে এক হয়ে থাকবে, এটাই প্রভু ঈশ্বরের ইচ্ছা। আমেন। तो अभी देखो, अभी प्रभु ने, अभी दोनों भी है, दोनों भी वो गार्डन में है। अभी उनका थोड़ा हम उसके उनके बारे में देखते कि दोनों कैसे थे। तो 25 वचन में अगर देखेंगे, दूसरा अध्याय उत्पत्ति का 25 वचन में अगर हम देखेंगे, तो दोनों नेकेड थे, हम्म। नग्न थे। आज हम नग्न हो सकते हैं क्या? नहीं हो सकते। नहीं। लेकिन वो बाग में वो दोनों नग्न थे, क्योंकि बुराई और बुराई का ज्यादा ज्ञान। से सोचो, सब कुछ बाकी तो सब हम्म। अच्छा ही था। तो बुराई नाम की चीज क्या है, ये कॉन्सेप्ट नहीं था वहां पर। नहीं इसीलिए था। वो नेकेड भी है, तो उनको लज्जा नहीं आ रही थी। हालेलुया। ऐसा तो लिखा এই है 2 নম্বর, 21 वचन में, ऐसा ही लिखा है कि उनको शर्म नहीं आ रही। ऐसा ही लिखा है। नहीं नहीं, গ্লোরি জিসাস। তো এই 2 নম্বর অধ্যায়ের 25 পদ যদি আমরা দেখি, তো তাকে তখন এখানে আমরা দেখতে পাবো যে আদম এবং তার স্ত্রী, অর্থাৎ সেই প্রভু ঈশ্বরের সৃষ্টি করা নারী, সবসময় উলঙ্গ থাকতেন, আমাদের মতো জামা কাপড় পরে থাকতেন না, কারণ আমরা এখন আমাদের মধ্যে আমরা কেউ জামা কাপড় ছাড়া থাকতে পারবো না কোনোদিনও, কারণ আমাদের মধ্যে লজ্জাবোধ আছে। কিন্তু এখানে পরিষ্কার লেখা আছে তাতে তাদের কোনো লজ্জাবোধ ছিল না, কোনো লজ্জাই ছিল না, যতদিন না পর্যন্ত পাপের আহ তারা পড়ে। আমেন, গ্লোরি Amen, জিসাস। amen। तो यही उनका रहने का तरीका था, बिल्कुल यही। तब तक ये बुराई एग्जिस्टेंस में नहीं थी वहां पर। देखो, अ, स्वर्ग में ये कॉन्सेप्ट था वहां पर, इसीलिए तो लूसीफर का स्वर्ग से अ, प्रभु ने उसको फेंक दिया था। लेकिन अभी प्रभु हम्म। ऐसे लोग बनाना चाहता था प्रभु, कि उनको ये पाप, ये बुराई क्या है, ये उन्हें नहीं जानना है। अपने लिए हम्म। पवित्र प्रजा। इसीलिए तो प्रभु ने आज्ञा दी कि ये जो पेड़ है, ये बुराई हम्म। का ज्ञान तुम्हें देगा। भलाई तो भलाई है सब कुछ, ये बुराई का जो, इसमें बुराई का भी फल है, ये फल में बुराई भी दिखाई है, तो ये तुम मत खाना। हम्म। ये प्रभु की मर्जी थी। और लेकिन हमें मालूम है, क्योंकि आज हम जीवित है, इसलिए हमें मालूम है कि ऐसा हुआ ही नहीं है, और क्योंकि हम पापी दुनिया में जो रह रहे हैं अभी, और हम्म। इसका असर बहुत बुरा हुआ है। नेक्स्ट टाइम हम देखेंगे कि क्या हो गया, कि हवा और आदम को एक फल खाना आदम के पड़ेगा साथ। पड़ा। और बाद में देखेंगे हम, जिसने भी उनको टेम्प्ट किया उसके बारे में भी ज्यादा हम जानेंगे, तो हमें पता चलेगा कि ये पाप दुनिया में आया कैसे। इतना सारा यस। सुंदर अब तक प्रभु ने अच्छा ही किया है। प्रभु की इच्छा भी थी कि ये पाप नाम की चीज मेरे बनाए हुए लोगों तक पहुंचे ना, इसीलिए वो आज्ञा हम्म। भी दी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। গ্লোরি জিসাস। তো এই যে যে ফল খাওয়ার জন্য প্রভু ঈশ্বর যেটা না করেছিলেন, কারণ প্রভু চেয়েছিলেন, কারণ এটা স্বর্গে
অলরেডি ছিল যে এই সমস্ত বিষয়গুলো, যে পাপ, লজ্জা, ভয়, ঘৃণা, না তো আহ, শয়তানকে ওই স্বর্গের থেকে নিচে ফেলা হতো না। প্রভু এটা জানতেন, কিন্তু প্রভু চেয়েছিলেন যে সমস্ত মানুষ তিনি সৃষ্টি করেছেন এবং তার জন্য একটা পবিত্র প্রজা তৈরি করতে, যাদের মধ্যে কোনো পাপ স্পর্শ করতে পারবে না। এবং সেই জন্যেই প্রভু আদেশ দিয়েছিলেন যে ওই যে মন্দ জ্ঞানের স্পেশালি যে গাছটা, সেটার ফল না খেতে। তাই জন্য প্রভু ঈশ্বর এটাই আজ্ঞা করেছিলেন, কিন্তু সেটা হয়নি। আহ ধীরে ধীরে এরপরে কি করে তাদেরকে সেই ফল খেতে বাধ্য করলো, কিভাবে বাধ্য করলো, এবং তার ফলে কি হলো, সেই বিষয়ে আমরা এর পরবর্তীতে আসবো। তারপরে কি হলো, এই ধীরে ধীরে এই সমস্ত বিষয়ে আমরা পরবর্তী ভিডিওতে জানার চেষ্টা করব। আহ আজকের মতো আমরা एखानेই এটা শেষ করছি। अभी हमारा टाइम खत्म ही हो रहा है, शायद फ्यू मिनट्स रहे होंगे, तो इसलिए हम यहाँ पर छोड़ देते हैं। नेक्स्ट टाइम हम देखते हैं कि कैसे पाप दुनिया में आया। और अभी मैं बस सबका मैं धन्यवाद करती हूँ, और जो हमारे सुनने वाले हैं उनको मैं इनकरेज करती हूँ कि बाइबल स्टडी शेयर करना बिल्कुल जरूरी है। लास्ट टाइम मुझे मालूम नहीं कि 100 लोगों ने ये हमारा बाइबल स्टडी देखा है, लेकिन आमेन। बिफोर लास्ट टाइम, लेकिन लास्ट टाइम का वापस फिर उतना ही नंबर है। तो मुझे मालूम नहीं कि क्या हो रहा है, लेकिन हम बस चाहते हैं कि प्रभु का वचन लोगों तक पहुंच जाए। तो शेयर आमेन। करना मत भूलना। ये तुम्हारी सेवा है। हमारी सेवा ये है आमेन। कि जो प्रभु ने हमें ज्ञान दिया हम आप तक लाते हैं। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप ये शेयर करना है, नहीं भूलना है। प्रभु का वचन आगे आमेन। जाए, आमेन। लोगों को समझ में आए कि प्रभु ने कैसे हमें सुंदर बनाया है। पाप भी किया हमने, आमेन। तो भी हमारे लिए क्या क्या किया प्रभु ने। पाप होता तो प्रभु हमें नष्ट भी कर सकते थे, लेकिन प्रभु ने ऐसा नहीं किया है। हमें संधि दी है, और आज वो संधि है प्रभु यीशु मसीह में। इसलिए जिन्हें भी आमेन। प्रभु यीशु मसीह के बारे में मालूम नहीं है, हमें इनकरेज करते हैं कि प्रभु यीशु जो मार्ग, सत्य और जीवन है, ये आप तक पहुंच जाए। और प्रभु कैसे ये प्रभु ने स्वर्ग का दरवाजा हमारे लिए खोल के रखा है, वो भी हमें समझ आए। और जिस आमेन। मनुष्य की एक प्रवास में सबको स्वर्ग जाने का एक सपना है। कोई भी धर्म से यही कॉन्सेप्ट है कि स्वर्ग जाना है, स्वर्ग जाना है। लेकिन बहुत सारे धर्म में मालूम नहीं कि कैसे जाए। इस्लाम में भी नहीं। आपको सरप्राइज होगा, हम्म। इस्लाम भी, मोहम्मद भी बोला अपने फॉलोवर्स को, मुझे मालूम नहीं मेरे मेरे मरने के बाद मेरा क्या हो जाएगा, उसने बोला। और वही मोहम्मद को, हम्म। उसके पीछे उसने नहीं बोला कुछ, लेकिन उसके पीछे जो अभी मुसलमान लोग हैं वो बोलते हैं कि मोहम्मद इज द ओनली वे। अब मोहम्मद को भी मालूम नहीं था कि उसका क्या होने वाला है। खुद कुरान में लिखा है ये, लेकिन उसके फॉलोवर्स क्या बोलते हैं कि मोहम्मद ही हेवन का दर मार्ग है। लेकिन यहाँ पर हम्म। हमारा प्रभु यीशु मार्ग, सत्य और जीवन में हूँ। जीवन। जो भी आमेन। मेरे से आएगा वो स्वर्ग में डेफिनेटली चला जाएगा, गारंटी दी है। हालेलुया। और आमेन। इसीलिए हालेलुया। आज प्रभु को जाने और प्रभु को स्वीकारे। अगर आपने प्रभु को स्वीकारा है तो हमें बता दे, फिर हम ज्यादा आपको प्रभु के बारे में बताकर फिर जो भी है प्रभु की दया से हम आगे बढ़ सकते हैं। আমেন। 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 তো আমরা আজকের মতো শেষই করছি, কিন্তু আপনাদের যারা শ্রোতা বা দর্শক বৃন্দ রয়েছেন তাদেরকে আমরা আর্জি করছি যে পৌঁছাতে হবে, এবং তার জন্য শেয়ার করাটা খুব জরুরি। আপনারা প্রভুরকে জানার সুযোগ সবার মধ্যে করে দিন। লাস্ট টাইম আমাদের ভিডিও অনেকগুলো ভিউ হয়েছে, যেন প্রভু ঈশ্বরের বচন আমরা সবার মধ্যে ছড়িয়ে দিতে পারি, जल्दी আমরা खत्म এই होने वाला है চেষ্টাই করব। फास्ट। তো এরপর আহ, যা হবে, সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, প্রভু ঈশ্বরের দয়া বর্ষিত হোক।